of this topic, write on the topic, to produce EMF by changing orientation. ब्रैकेट में आप थीटा भी लिख सकते हो. प्रोडक्शन ऑफ EMF by changing थीटा या orientation. by changing थीटा या orientation. और साथ में टॉपिक लिख दो AC जनरेटर. टॉपिक AC जनरेटर. अरे सो टॉपिक इज AC जनरेटर. सबने लोअर क्लासेस में पढ़ा है जनरेटर का फंक्शन क्या होता है. व्हाट्स अ जनरेटर. जनरेटर एक सिंपल एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है. इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दो मेन टॉपिक्स आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे. वन इज अ मोटर एंड सेकंड इज अ जनरेटर. मोटर क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. और जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो जल्दी से लिखोगे जनरेटर इज अ डिवाइस. जनरेटर इज अ डिवाइस used to convert. It is a device used to convert electrical energy into the mechanical energy into the electrical energy. It is a device used to convert mechanical energy into the electrical energy. It is a device used to convert mechanical energy into the electrical energy. For life. At home, we need it to run the appliances like electric bulb, television, refrigerator, fan, etc. And in the industries, it is used to run different types of machines. An AC generator is used to generate electricity at various power stations like thermal power stations, nuclear power stations, and hydroelectric power stations. However, an AC generator can also be seen at home, which is used during power outages to keep the appliances like fan, refrigerator, etc. working until power is restored. Let us understand how an AC generator produces electricity. An AC generator is a device used to convert mechanical energy into electrical energy. It was originally designed by a famous physicist, Nikola Tesla. Working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. According to this principle, a change in flux linked to a coil induces an electric current in the coil. The direction of the induced current in the coil can be given by Fleming's right-hand rule. Lenz's law can also be used to find the direction of current in the coil. Let us now see the construction of an AC generator. An AC generator consists of field magnets, an armature, 2 slip rings, and 2 carbon brushes. The poles of field magnets are concave and cylindrical in shape and therefore produce a radial magnetic field. Armature is a soft iron core on which a coil having a large number of turns of copper wire is wrapped. The 2 ends of armature are attached with 2 slip rings. These rings rotate with the coil. The slip rings are made of metals and are insulated from each other. 2 brushes are made of carbon. One end of each brush is in contact with rotating slip rings and other end is connected to an outer circuit. A galvanometer is connected in the outer circuit to show the deflection due to the current induced in the armature. When coil is rotated between the pole pieces, a current is induced in the coil. The induced current is shown by the deflection in the galvanometer. The two-way deflection in the galvanometer shows that the induced current is alternating. Now let's see the working of an AC generator. The armature keeps on changing its relative position with respect to the magnetic field as it rotates about an axis perpendicular to the field. Therefore, the flux linked with the coil keeps on changing with time. As a result, an EMF is induced. This in turn induces an electric current in the coil as the 2 ends of armature are connected to an external circuit. An electric current starts flowing through it. The current is detected by the galvanometer connected in the external circuit. Due to change in the relative position of the armature coil, the direction of the current flowing in each arm of the armature coil keeps on changing, and hence the current so obtained is alternating current. The topic is the AC generator. We have seen
in order to convert the mechanical energy into electrical energy, we have to use a generator that is called as a AC generator. But why it is called as a AC? That is a alternating current generator. आप सबको पता है alternating current जो होता है that is also called as a fluctuating current. Fluctuating का मतलब is having, अगर हम AC की बात करें, पहले भी बात कर रखी है, हमने डिस्कस करा हुआ है. In the AC current there are the two half, one is a positive, second is a negative. But इस positive और negative half का मतलब क्या होता है कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. Just like in the animation also आपने यूज देखा, उसमें एक गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रही थी, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रही थी. मतलब डिफ्लेक्शन एक साइड पर नहीं थी, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन जो थी वो दोनों साइड पर थी. क्या शो हो रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है. नेक्स्ट चैप्टर बेटा ये है अल्टरनेटिंग करंट, उसके अंदर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक इज AC जनरेटर is a device used to convert mechanical energy into the electrical energy. So write down the principle. Hurry up. Principle of AC generator. It is based on the principle of EMI. It is based on the principle of EMI, electromagnetic induction. It is based on the principle of EMI, that is electromagnetic induction. आपको पता है, इसको मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो. That is according to EMI. That is according to EMI. When the magnetic flux through the coil changes, when the magnetic flux through the coil changes, when the magnetic flux through the coil changes and induced EMF and current, induced current produced in the coil changes and induced EMF and induced current produced in the coil, produced in the coil. Diagram आप सबने बना रखा है बेटा डायग्राम. In the case of the AC generator, it consists of two strong magnets. एनिमेशन के अंदर इसको कॉनकेव शेप्ड बनाया हुआ था. याद आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिस्कस करा था. व्हाई वी आर यूजिंग द कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट, याद होगा सबको. व्हाई वी आर यूजिंग, यस, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट जो होते हैं बेटा वो रेडियल फील्ड प्रोवाइड करते हैं. बस इसका आपको ध्यान रखना है. सो मैग्नेट जो होते हैं इसके अंदर हमने एक कॉइल को प्लेस करना है. दिस इज अ कॉइल प्लेस इनसाइड दैट मैग्नेट्स. Yes, what happened? So ये वाले diagram, this is the diagram. So a rectangular coil is placed between the two magnets, is having the slip rings. आप सबने diagram बना रखी है बेटा. These are the slip rings. Then that are connected with the external sources. मतलब हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं और उस करंट को यूटिलाइज कर लिया जाता है. This is the axis of rotation, जिसके अराउंड इस कॉइल को रोटेट करना है. तो डायग्राम सबने ऑलरेडी बना रखी है. वंस अगेन एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई. जब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगी तो यहां पर करंट और ईएमएफ की प्रोडक्शन होगी. डायग्राम इज देयर. जल्दी से कंस्ट्रक्शन लिखोगे. राइट ऑन द कंस्ट्रक्शन. अरे इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल A B C D. It consists of a rectangular coil ABCD. मेंशन कर दो इसको. It consists of a rectangular coil ABCD. इसको बोलते हैं armature. AR is called armature. इस coil को बोलते हैं बेटा. It consists of a rectangular coil called armature. ABCD called armature. Placed between the two strong magnets. Placed between the two strong magnet. Now look at the board very carefully. बेटा ये कॉइल ऐसे पड़ी है. जल्दी से मुझे डायरेक्शन बताओगे मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम. सर वीडियो नहीं आ रही है होगी सर.
रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बेटा कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर, प्लेस बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, प्लीज चेक करना, द कॉइल इज प्लेस्ड इन दिस मैनर, दिस इज द कॉइल, कॉइल जो इसमें में प्लेस है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, कैन वी से दैट मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल दोनों पैरेलल हैं, बेटा ध्यान से देखिए बताना, क्या प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और अगर मैं इस कॉइल के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो B और एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। जब आप फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स के केस में एरिया नहीं होता है, एरिया वेक्टर होता है, तो ध्यान से बताना, जब कॉइल इस वे में पड़ी है, कैन वी से दैट थीटा की वैल्यू 0 होगी, सॉरी 90 होगी, बेटा BA cos theta. Can we say that when the coil is placed in this manner, coil को मैं रख के दिखाता हूं, जब coil इस वे में place है बेटा, when the coil is placed in this manner, this is the magnetic field, तो area vector तो बाहर की तरफ होता है, so when the coil is placed in this manner, can we say that ये थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो फ्लक्स कितनी होगी 0 होगी, ये आप सबको पता है। अब कॉइल को रोटेट होना है, एक बार पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर लिखवाता हूं। कॉइल वैसे ऐसे पड़ी है तो फ्लक्स 0 है, अगर कॉइल ऐसे हो जाएगी, जल्दी बताना थीटा कितना होगा, ना व्हाट्स द थीटा, इज इट 0? अगर थीटा 0 हुआ तो क्या फ्लक्स क्या होगी, मैक्सिमम, चेक करो, फ्लक्स मिनिमम, फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स मिनिमम, फ्लक्स मैक्सिमम। कैन वी से दैट अगर आप इस कॉइल को रोटेट करना शुरू कर दो, दिस इज द कॉइल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियली द एंगल इज 90, फ्लक्स इज 0, दिख ही रहा सबको। जब कॉइल को आपने 90 पर रोटेट करवाया तो फ्लक्स क्या हुई, मैक्सिमम, अगेन द फ्लक्स इज मिनिमम, अगेन मैक्सिमम, अगेन मिनिमम। इसका मतलब अगर आप इस कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर दो तो फ्लक्स मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। When it is minimum or maximum, it means can I say that the flux start changing? तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगी, और as we know बेटा, जब फ्लक्स चेंज होती है तो उससे क्या बनता है, EMF की प्रोडक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, एंड दैट्स व्हाट द कांसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो इनिशियली हमने क्या यूज करा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा, मैग्नेट्स के अंदर प्लेस करा, उसके बाद एक लाइन लिख लो जल्दी से, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the direction of magnetic field, direction of magnetic field, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, yes बेटा, सर कंस्ट्रक्शन बस वो 2 नहीं लाइन बेटा, ये अभी कंस्ट्रक्शन का पार्ट ये है, कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल कॉल्ड आर्मेचर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसी के अंदर ही लिखना है आपने, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular with the area vector. The direction of magnetic field is perpendicular with the area vector. Is perpendicular with the area vector. It also consists of two split rings, SPLIT. It also consists of split rings. Split rings and carbon brushes. It also consists of split rings and carbon brushes. Now write down the working. डायग्राम बना लीजिए बच्चे, वर्किंग। पहले प्लीज सारा टॉपिक सुन लो, समझ लो, उसके बाद इसको लिख लेते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अ वर्किंग। लुक एट द बोर्ड। अब हमें क्या करना है, कॉइल को रोटेट करवाना है। आपको पता है जब कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट करेगी विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा। सुनना बच्चों सभी ध्यान से, when the coil rotates with the angular speed omega, अगर वो ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगी तो एंगल चेंज होगा। इनिशियली चेक करो एंगल कितना है, प्लेन ऑफ कॉइल की बात कर रहा हूं,
पहले प्लेन ऑफ कॉइल के साथ एंगल 0 है, फिर 90 है, फिर 180 है. तो कैन वी से दैट व्हेन द कॉइल रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, दैट इज, बेटा याद है आपने 11th में ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बाय टी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर मैं यहां से थीटा निकालूं तो थीटा कम्स आउट टू बी ओमेगा इनटू टी. मतलब अगर ये कॉइल रोटेट करेगी विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विल चेंज. क्यों चेंज होगा, जल्दी बोलो. कैन वी से दैट ये 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है. मतलब अगर कॉइल ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगी तो एंगल थीटा जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा टी वो भी चेंज होगा. और एज वी नो अगर थीटा चेंज होगा, फाई का फॉर्मूला बोलो जल्दी, बी ए कॉस थीटा. अगर थीटा चेंज होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगी, और अगर फ्लक्स चेंज होगी तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू ईएमआई फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनता है. दोबारा सुनोगे, अगर कॉइल रोटेट करेगी विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन उसके चेंज होने से या रोटेट करने से थीटा चेंज होगा. थीटा के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनेगा. सो थीटा की वैल्यू मैंने अभी लिख दी बेटा. सो इज इट बी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, इट इज ओमेगा टी. सो अगर थीटा चेंज होगा मतलब ओमेगा टी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ बनेगा. सबने सेकंड लो याद होगा सबको, ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस डी फाई बाई डी टी. एक चीज और इंक्लूड कर रहा हूं, इफ द कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न, अगर कॉइल के अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं तो फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा. अगर कॉइल ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगी, ओमेगा अगर रोटेट करेगी एंगुलर वेलोसिटी होगी तो थीटा चेंज होगा. थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो अकॉर्डिंग टू ईएमआई उस कॉइल के अंदर ईएमएफ की प्रोडक्शन होगी, दैट इज माइनस डी बाय dt एज इट इज 5 बचे, दैट इज n b a cos omega t. टेक माइनस n b a आउटसाइड, d by dt of cos omega t. cos का डिफरेंशिएशन याद है सबको, cos का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा. ये समझ आया, इनटू ओमेगा को लिखा चेन रूल, जो भी t के साथ वेरिएबल होता है साथ में मल्टीप्लाई होता है. सो द फाइनल आंसर ऑफ ईएमएफ इज, वीडियो फ्रीज हो गई. सो cos omega t की डिफरेंशिएशन माइनस sin omega t into omega. So we have the final answer nba omega sin omega t. So this is the formula for the EMF produced in the coil. जल्दी से एक बार सारा पॉइंट सुनोगे समझोगे. चलो पहले जल्दी से इसको लिखवा देता हूं. Write down the working part. अरे working. When the coil rotates, write down when the coil rotates with angular speed omega, when the coil rotates with the angular speed omega, then लिखोगे ये वाला, then omega is equal to theta by t and theta is equal to omega t will change. When the coil rotates with the angular speed omega, then theta that is equal to omega t will also change. Then the theta that is equal to omega t will change. Theta will change as phi is equal to nba cos theta, as phi is equal to nba cos theta. So flux phi will also change, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है बेटा, थीटा चेंज होने से फ्लक्स विल आल्सो चेंज. सो phi that is flux will also change. यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर दो. सो phi is equal to nba cos omega t.
वंस अगेन जब कॉइल रोटेट करेगी विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, उससे थीटा चेंज होगा, थीटा के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगी। देन अकॉर्डिंग टू ईएमआई, according to electromagnetic induction and induced EMF produced in the coil, flux change हो चुकी है, then according to EMI the according to electromagnetic induction then induced EMF produced in the coil, और उसकी वैल्यू लिख लो E is equal to minus d phi by dt and solve it in order to get the answer, that is E is equal to NBA omega sin omega t. The EMF E comes out to be NBA omega sin omega t. Now the important parameter here also. So we got the answer of EMF E as NBA omega sin omega t. Look at the board very carefully. Can we say that the EMF will be maximum? EMF maximum तब होगा जब ये angle maximum हो रहा है. The EMF will be maximum when this angle will be maximum. It means EMF will be maximum when sin omega t is equal to plus minus 1. पता है सबको? अगर ये एंगल मैक्सिमम हो जाएगा तो EMF डेफिनेटली मैक्सिमम हो जाएगा, और ये एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस माइनस 1, और सबको पता है किस एंगल पर साइन 1 और माइनस 1 होता है. द एंगल्स आर 90 एंड 270. मींस एट दीज टू एंगल्स, जब एंगल, पहली बात दोबारा डिस्कस करते हैं, ये एंगल किसके बीच में बेटा? द एंगल इज इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, देन द EMF विल बी द मैक्सिमम वन. इस चीज का ध्यान रखना है. सो वंस अगेन EMF विल बी मैक्सिमम व्हेन sin ओमेगा t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और थीटा आप थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ओमेगा t इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 270 डिग्री. व्हेन this value become 1, तो ध्यान से देखो, तो E is equal to क्या हो गया? NBA ओमेगा sin ओमेगा t को हमने क्या लिख दिया? हमने इसको प्लस माइनस 1 लिख दिया. then this term comes out to be E naught. इसको हम क्या बोलते हैं? E naught. E naught stands for the maximum value. मतलब बेटा अगर sin ओमेगा t की वैल्यू को 1 लिख दिया जाता है, then this E comes out to be, इस E की जगह क्या लिख दिया जाता है? E naught लिख दिया जाता है. That is called as a maximum value. Once again, EMF maximum हो जाएगा अगर ये वैल्यू 1 और माइनस 1 हो जाएगी. अगर मैंने इस वैल्यू को 1 और माइनस 1 लिख दिया, then instead of writing E, I'm writing it as a E naught. E naught के अंदर मैंने इस टर्म को छोड़ दिया क्योंकि इसकी वैल्यू को मैंने प्लस माइनस 1 लिख रखा है. So maximum value of EMF is E naught sin, E naught is equal to NBA omega. बेटा अगर NBA ओमेगा को मैं E naught लिखूं, सुनना ध्यान से अगले पूरे चैप्टर का फॉर्मूला, तो ध्यान से देखना ये इक्वेशन क्या बन गई. इज इट बिकम E का फॉर्मूला था NBA ओमेगा sin ओमेगा t. So this term comes out to be E naught. So we have a very important formula for the next chapter, that is E is equal to E naught sin omega t, where E naught stands for the maximum EMF. Once again, E naught stands for the maximum EMF. याद रखना, अगर आपको मैक्सिमम EMF निकालना आता है तब आपको EMF का फॉर्मूला लिखना है NBA ओमेगा, and that's about the last point, that is EMF is equal to E naught sin omega t. So that's about the working of this AC generator. In this AC generator working दोबारा सुनोगे, जब एक कॉइल रोटेट करेगी विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इस कॉइल के चेंज होने से, ओमेगा के चेंज होने से थीटा चेंज होगा. थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होगी देन अकॉर्डिंग टू EMI EMF बनेगा. आपने इस EMF को फाइंड आउट कर लिया, इट इज NBA ओमेगा sin ओमेगा t. यहां पर हमने क्या लिखा कि ये EMF मैक्सिमम कब होगा? जब sin ओमेगा t की वैल्यू क्या हो रहा है? प्लस माइनस 1 हो रहा है. दैट इज ओमेगा t कितना हो गया? 90 और 270.
इट मींस जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है देन दिस टर्म एन बी ए ओमेगा को हम ई नॉट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड बाय यूटिलाइजिंग दिस वन वी गॉट द आंसर E is equal to E naught sin omega t। इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना बेटा कि फ्लक्स और EMF किन किन एंगल्स पर, यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है सभी बच्चों को, मतलब EMF तब मैक्सिमम होगा जब एंगल 90 और 270 होता है। फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का फॉर्मूला था NBA cos थीटा। बेटा फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल कितना होता है, चेक करो, अगर फ्लक्स की बात हो रही है तो फ्लक्स मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 0, 180 और 360 होता है। इन तीन एंगल्स पर फ्लक्स मैक्सिमम होती है, और इन दो एंगल पर 90 और 270 पर EMF मैक्सिमम होता है। द रीजन इज फ्लक्स में बेटा cos थीटा है, यहां पर EMF के अंदर sin थीटा यूटिलाइज कर रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ध्यान रखना कि फ्लक्स विल बी द मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन, बार बार बोल रहा हूं, एंगल किसके बीच में है, द एंगल इज इन बिटवीन B, that is magnetic field, and A is not the area, it is the area vector. Similarly here also, so that's about the topic. The topic is AC generator device है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है based on the principle of EMI, पढ़ा हुआ है सबने। रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा गया, साथ में ब्रशेस लगाए गए और साथ में स्प्लिट रिंग लगाई गई। प्रोसेस इसको रोटेट करवाया, रोटेट करेगी तो फ्लक्स फील्ड लाइंस कट होंगी, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स के चेंज होने से EMF की प्रोडक्शन होगी। सो दैट्स हाउ द थर्ड पार्ट ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस द EMF इन द कॉइल। सो तीन मेथड हमने पढ़ लिए बेटा, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, by changing the area, and the third, the last point is by changing the orientation called as AC generator.